new chapter today. Finally, on all your demands, cell cycle and cell division we are starting. So get ready everyone for this chapter. And like every chapter, in this chapter we are going to do a lot of chill, a lot of studies. And you all are going to gain a lot of knowledge and you are going to clear all your doubts, and I will try my best to make this chapter as simple as possible for you all. Okay? Chalo, get ready for cell cycle and cell division. Board is visible to everyone? Yes, ma'am. Okay, so be active with your mics. Chalo. Up. Cell chapter we finished yesterday. Okay? In this cell chapter you learned a lot. And in the last of the portion of this chapter, we talk about chromosomes. Okay? We have talked already about the structure of the chromosome. You were absent, beta. I know this. अभी तुम्हारा ऐसे होता रहेगा, गायब रहेगा. I hope that you must be having a prior knowledge. तभी तो तुम absent थे. I hope so. So anyhow, उसमें we talk about kinetochore. So this kinetochore का application we are going to do on the M phase, metaphase में करेंगे. उससे पहले it is very important to understand the cell cycle. ठीक है? However, the checkpoint वाला portion is not in your syllabus, but थोड़ा सा I will be making you to understand कि how a cycle is moving from one phase to another. What is interphase? What are the different phases of the cell cycle? Okay. If we see, so and if we divide any cell, okay, suppose if we think there is a cell which is taking 24 hours for its cell division. Suppose, okay, so this phase, this is called the M phase, and rest of the phase you all are watching is the interphase. Okay? So if we divide this in 24 hours, so M phase is the phase which is just for 1 hour. And rest of the time it is taking in the interphase. So मान के चले 22 to 23 something, if it is taking 24 hours. Yes. However, different cells they take different time for cell division. ठीक है? जैसे if we talk about Escherichia coli, E. coli है ना? So E. coli, it takes how much time in its cell division? 7 बोलो बोलो. Anyone who knows? हाँ शानुका? 18 minutes. 19.5 की बोल दो कोई? 20 minutes. 20 minutes. ठीक है? E. coli it takes 20 minutes. मैं भी 19 बोलूँगी. चलो, your epithelial cells. Epithelial cells they take about 7 to 8 minutes. ठीक? Onion का जो सेल होता है it takes 20 hours. समझ रहे हो? 20 hours. और yeast cells, yeast क्या है? Saccharomyces, it takes 90 minutes. That is 1.5 hour. It takes 90 minutes. So there is a different requirement of this timing for every cell, right? So उस पे ना पढ़ते हुए, we will be thinking कि just little bit of the portion is spent in this M phase and rest of the time is given for the interphase. So क्या cell is doing the rest here? क्या cell rest कर रहा है? Oh ma'am. Then Preparatory phase. preparatory phase है.
Ankit is saying duplicative phase है. So however little bit of mixture of all these things. So यहाँ पे this M phase is the phase where it is the most metabolically active phase. सबसे ज़्यादा इस phase में interphase में cell is active. This is the metabolically active phase. ठीक, अब metabolic active phase है. This means कि this is also requiring a lot of energy. ATP भी लग रही होगी यहाँ पे, है ना? So इस phase को in order to cross through this phase, ठीक, it needs a lot amount of energy, which it will be taking of course from the ATPs. ठीक, और एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि when replication takes place, DNA होता है. DNA के न्यूक्लियोटाइड्स क्या क्या है भाई? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन. ठीक है, तो ATP आ सकता है वहां से, GTP आ सकता है, ऐसी चीजें can come from there also. So न्यूक्लियोटाइड्स वाले पोर्शन में भी ATP, GTP ये सारे will be helping, right? चलो, अब forget about some time this M phase. M phase को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए and let's see this interphase. हम यहाँ से यहाँ तक we are going to watch कि what is happening here. So M phase में जब ये यहाँ M phase done हो रही है, M phase में चलो कुछ यहाँ लिख देते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और उसका एंड यहाँ पे यहाँ तक ये आता है. दिस इज साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस. ठीक है, तो ये जो एम फेज है ना, यहाँ से यहाँ तक की एग्जैक्ट माने इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आपका चल रहा है. इस फेज को वी विल बी कॉलिंग कैरियोकाइनेसिस. वेरी गुड, कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस, कैरियन से आपको अब तक यू मस्ट बी नोइंग कि न्यूक्लियस को बोलते हैं, है ना? सो यहाँ पे एग्जैक्ट थिंग व्हिच इज एक्चुअली गोइंग टू डिवाइड इज द क्रोमोसोम. सो द डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम इज हियर रिप्रेजेंटेड बाय दिस टर्म कैरियोकाइनेसिस. ठीक है, सो उसके बाद साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस मींस वेरी गुड, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. Division of cytoplasm. ठीक, so this karyokinesis means division of the chromosome and then जब chromosome divide हो जाएगा, after that the division of cytoplasm will take place, which is cytokinesis. एक सेल हो गया, अब now a cell is divided. अब एक वो new cell है, it's a fresh cell. ठीक, तो a fresh cell will enter a phase and इस phase को we call G1. Jeevan was a character in some movie of Shah Rukh Khan. Huh? Ravan में? No, I have not watched. I'm not so much fond of movies, but सुन लेती हूँ. So Jeevan, and Jeevan वैसे भी कहते हैं किसी को नया जीवन मिलना, है ना? And we all belong to this India and we know little bit of Hindi. ठीक है? तो Jeevan means alive. ठीक है? यहाँ पे new life the cell is getting after cytokinesis. Anyhow, G means gap. G means gap. So this is the first gap phase. So this G1 is the gap 1 phase. ठीक है? Gap 1 हो गया. And after this gap 1, another phase it is going. यहाँ तक ये पूरा था interphase. Confuse नहीं होना. This phase exact I am going to write. जो आपको लिखे. This is the S phase. ठीक, so ये हो गया G1, this is the S and this is the G2. G2 means gap 2, gap 2. S means synthesis. किस चीज की synthesis? DNA replication. जो इतना बड़ा chapter you have. Protein synthesis. Okay, जो a lot of chapter in class 12 you have done this molecular basis of inheritance. इतना ज़्यादा you have done this DNA replication. पूरा replication is in this S phase only और कहीं नहीं होता.
ठीक है, it is in this S phase only of the cell cycle. So these are some of the phases of the cell cycle. G1 phase, S phase, G2 and after that ये M में and at the end cytokinesis हो जाएगा and a cell is formed. But G1 में what अभी हम नहीं देख रहे हैं क्या वर्क हो रहा है. We are not watching still कि what is happening. When a cell is in G1 and in order to come to this S, ये जो भी portion है, this must be watching कि all the requirements which were due for this phase, they are done or not. Check होगा कि नहीं होगा, है ना? It won't be entering कि without completing the work, it will be coming to this S. ऐसा नहीं होगा. There is no father there to give donation कि भेज दो S में, है ना? है ना? Just make my kid jump one class. ऐसा नहीं होने वाला है. तो बहुत ही मेहनती हैं. They all are doing hard work. And G1 in order to cross this G1 to S, यहाँ पे some checkpoints are there. ठीक? Some checkpoints are there. So इन्हीं को कहते हैं cell cycle checkpoints. ठीक है? Cell cycle checkpoints. Similarly, when they have to go from S to G2, there are also some checkpoints there. ठीक? Some cycling proteins are there which are watching कि whether they are doing or not. और वहाँ से then जैसे आप पढ़ते हो cell membrane आपको पढ़ाई थी तो there are some G proteins, there are some proteins which give the signals, receptors. तो similar way में there are some proteins and which will allow the entry of this portion to the next portion, and in this way the checkpoint is done. Clear? The first checkpoint here. Now you can enter to this S phase. S phase का work is finished. Now you can checkpoint clear. Second checkpoint clear. Now you can enter the G2 phase. And G2 पे checkpoints clear. Now you can enter this mitotic phase. M phase means mitotic phase. Now you can enter the mitotic phase. ठीक? Mitotic हो या meiotic हो, ठीक है? Interphase is the first phase everywhere. वो आएगी, whether it is mitosis या meiosis. However, meiosis जब होती है, तो meiosis 1 and meiosis 2 is there, है ना? तो ये तो first interphase आती है, that is always there. But जब meiosis 1 से meiosis 2 जाता है, then there also is some little bit of interfaces there, some little bit of preparation is there, not this much, but वहाँ पर भी थोड़ी बहुत होती है, and this we will see when we will on the meiosis करेंगे. But major what you have to study is this, और इसीलिए mostly commonly we give this word M, and M से we mean mitotic phase. Okay? चल, अब ये आप करने वाले हो. Before this, first know what is amitosis. Mitosis करें उससे पहले let's see कि what is amitosis. अभी mitosis करनी है जहाँ पे you have to see the prophase, then metaphase, then anaphase, then telophase. वो सारी चीजें करनी है. But right now I am talking about amitosis. अभी शेयर करेंगे, उसको भी करेंगे. So we will return back to that first page. ठीक है? उसको तुम लोग खाली रखना, space छोड़ना. A lot of points we have to see there. Okay? Before that, let's see amitosis. Amitosis में suppose if I talk about a bacterial cell, जिसे आप normally usually you called binary fission. या suppose I talk about amoeba, या if I talk about euglena. हालांकि amoeba, euglena भी आ गए हैं in this eukaryote में, है ना? Protistans हैं, but फिर भी they are not so much highly organized to go for a complete mitosis. अच्छी वाली नहीं करते हैं. Okay, so little bit a term is there which is amitosis from there. मतलब नहीं होना माइटोसिस, नॉट माइटोसिस. ओके, सो अगर मान के चले ये अमीबा है एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द अमीबा. एंड अब क्या
क्या होने वाला है कि ऑफ कोर्स एवरी सेल, कोई भी सेल हो, न्यूक्लियर मटेरियल विल डुप्लीकेट। तो न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ भी डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर मटेरियल नॉट जस्ट इज डुप्लीकेटिंग बट इट इज आल्सो इलोंगेटिंग, ठीक है, इलोंगेट कर रहा है, इलोंगेटिंग एंड डुप्लीकेटिंग न्यूक्लियर मटेरियल। तो ये जो है अमीबिक सेल, यहाँ पे this type of thing is formed, right? And then the constriction of the cell will take place and it will divide. ठीक? So when two daughter amoebae are formed, when इतना बड़ा डिफरेंस नहीं हो जितना मैं दिखाने जा रही हूँ, सपोज मान लेते हैं there is unequal division of this nuclear material. It is not always the case that they are doing a equal division. ठीक? But mitosis is a thing where always equal division of the nuclear material will take place. है ना? So इसी वजह से this is called amitosis. और एक और चीज कि when unequal division of nuclear material is taking place, तो दो डॉटर अमीबीज में इट इज गोइंग, तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इक्वल चला गया था, राइट। और यहाँ पर जो ये हो रहा है, इट इज नॉट ऑलवेज द केस कि ये डिवाइड ही हो, इट इज नॉट ऑलवेज द केस, दिस विल डिवाइड और दिस विल कीप इटसेल्फ ओनली लाइक दिस, मतलब अंदर ही ऐसे डिवाइड कर गया, ठीक है, विदाउट द साइटोकाइनेसिस, without the cytokinesis. However, this also takes place in mitosis B. Whenever we see any difference between a two, ऐसा नहीं करते हैं हमेशा कि no लिखे के लिए, है ना? We always see कि similarities क्या आने वाली हैं। तो mitosis में भी, like if you think you drink this coconut water, coconut water is the endosperm of the cell. वहाँ पे a lot of nuclear division is taking place without the formation of cell wall, है ना? तो that stage is called syncytium. Syncytium बोलते हैं। तो वहाँ पर भी it is seen कि nuclear division can be followed by cytokinesis or cannot be followed by cytokinesis. So वो चीज यहाँ भी हो रही है। What important point you have to notice here, यहाँ पे कि it is the unequal division, है ना? Unequal division किस चीज का भाई? Unequal nuclear division. ठीक? So this is the amitosis. Similarly, euglena में, paramecium में, and all these things similar methods में ही होती हैं. Come back to this mitosis. So वो था amitosis का थोड़ा सा. I hope कि amitosis is clear to everyone. Anyone having any type of doubt in amitosis? No, ma'am. Here, ma'am. Okay. अपनी okay. ठीक है. Zoya, Ikra, clear बेटा? गायत्री, बोलो. अरे you all are budding doctors. You have to speak with so many patients and तुम शर्माओगे तो फिर कैसे होगा? So, let's start with this first phase, gap phase. Gap 1. Gap 1 में क्या-क्या हो रहा है? Let's see all these things. ठीक? Gap 1 is the first phase when a new cell is entering. एक नया cell था, it is entering. वो अब जो space में आया है after cell division, a cell is now in gap 1. ठीक है? So, there are a lot of cells in our body, like your heart cell, your kidney cell, है ना? They don't want to divide at all. They don't want to divide at all. Heart में cell division करता है? Heart बड़ा होता है किसी का? नहीं होता ना? Heart पे if there is a damage, तो अभी तो आ रहा है heart transplant या kidney transplant, but तब earlier times में तो it was even unknown, तो heart never divides. रिपेयर नहीं होता, there is no repair in heart. ठीक है? किडनी में भी there is no repair. However,
मेटाबॉलिक एक्टिव है फॉर देयर मेंटेनेंस, बट दे आर नॉट डिवाइडिंग एट ऑल। तो जैसे ही जीवन में वो आएंगे, है ना, द टाइम दे विल एंटर दिस जीवन फेज, यहाँ से quickly they get out and into this phase. This phase is G0 phase. ठीक, this phase is G0 phase. कौन से cells आएंगे? Please write the example. Heart, kidney, बिल्कुल सही, neurons. एक और है, यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ liver. ठीक है, these types of cells they also enter into the G0 और उनको डिवाइड नहीं करना होता है, they don't have to divide. However, we have seen one good thing, you know the liver is very important thing for our body. कि भाई it is for cholesterol, it is for bile, it is for fat solubilization, a lot of function it is doing. ठीक? So liver cirrhosis भी एक disease होती है where hardening of the liver takes place. तो वहाँ पर it is dangerous. Otherwise, a normal liver, if it needs repairment, जैसे jaundice आया, बहुत सारे diseases आते हैं which affect the liver. So liver at that time will try to repair itself. Otherwise, it is not going to increase its size जब तक कि it has not attained a full maturity. ठीक, after attaining a proper maturity, these cells they don't divide. ठीक, so liver है, if it requires any type of repair, then it will re-enter into this G1. ये बहुत important question है for the NEET. इसको याद रखिए, this is very important. Cell will exit from G1 to G0 and यही पूछते हैं कि where they will re-enter. It will re-enter back into this G1. वो जीवन में ही एंट्री करेगा वापस से, किसी और, not in any other phase. ठीक है, क्लियर है सबको? एंड मेरे ऑनलाइन बच्चे, अभी सब प्लीज स्पीक थ्रू द माइक. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. So, G1 से cell is moving to this G0 and G0 से again into G1. So please concentrate. Every cell is not doing this. बाकी के normal cells they are from G1 to S and S to G2. Only those cells who don't want to divide, they are exiting this cell cycle from the G1 to G0. G0 phase एक तरह की resting phase है. It's a type of resting phase where a cell is metabolic active but in a non-dividing condition. So like liver cell है, if it want to divide, if it is having any injury or damage, then it can return back to G1. Otherwise no. Otherwise वो भी रहेगा in the G0 only. ठीक है? चलिए, so G1 से S and S to G2, this is the normal routine of any cell. Okay? So for a mitosis, how many phases are required? Ma'am, जी बेटा. हार्ट सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं, मतलब आदमी तक. तो बेबी से अडल्ट के जब हार्ट में पूरा मतलब, हमें तो मैंने बताया कि आफ्टर दे हैव अटेन मैच्योरिटी, उसके बाद नहीं होना है ना. एक बार अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी तो होगी ना. सो G1 से S to G2, G2 to प्रोफेज, then metaphase, then anaphase, then telophase, then ये है, this is the scene of mitosis. और बिल्कुल ऐसे ही याद रखेंगे और इसी में से क्वेश्चंस आते हैं. This only cycle से they ask you question, which phase is coming before this phase या which is coming after. So try to remember this sequence. ठीक? So G1 start करेंगे. G1 क्या कह रहे हैं? It is the gap one phase, है ना? Gap one phase, gap है. तो gap doesn't mean it is not doing any work.
ठीक, S को याद रख लो कि दिस इज द सिंथेसिस फेज, इसको हमेशा याद रख लो कि दिस इज द सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस ऑफ डीएनए हो रहा है यहाँ पे, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन की फेज है। सो बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन what are the things required? These things are done in this gap-1 phase. Gap-1 करता क्या है कि all the prerequisites of S are fulfilled in this gap-1. Similarly, S में DNA synthesis and all these things are done. और G2 आ रहा है, G2 is before this M. So all the prerequisites of M is done in this G2. है ना? All the prerequisites of M. साइज किसमें बड़ा होता है? बता जा, G1 आ गया, just a second, G1 आ गया and G1 is the gap phase। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, please remember कि a cell needs a lot of things। अगर प्लांट है तो it needs chloroplast, अगर और भी नॉर्मल सेल्स हैं तो दे नीड देयर माइटोकॉन्ड्रिया, दे नीड देयर लाइसोसोम्स, बहुत सारी चीजें दे नीड। ठीक, रेप्लिकेशन होना है एंड रेप्लिकेशन के बाद अल्टीमेटली रेप्लिकेशन यहाँ होगा इन दिस एस फेज, बट आफ्टर रेप्लिकेशन भाई प्रोटीन फॉर्मेशन भी होनी है, लॉट ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड। सो जो जो बन जाएगा यहाँ पे ये देख लो, रीमॉडलिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स आर टेकिंग प्लेस। किसी का डिवीजन हो रहा है, किसी का रीमॉडलिंग हो रही है, ऑल दीज थिंग्स आर टेकिंग प्लेस इन दिस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा इनका बाइनरी फिशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और क्या क्या हो रहा है, लाइसोसोम्स, ईआर, गोल्गी, कुछ नया बन रहा है, समथिंग दे आर रीमॉडलिंग देमसेल्व्स। इसीलिए ड्यूरिंग जब आप स्टेजेस देखते हो, व्हेन यू वॉच द डायग्राम, दे ऑल आर नॉट विजिबल देयर, वो दिखते नहीं है, ठीक है, बट ऑन द बैकग्राउंड ड्रॉप देयर फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। ये बन रहा है, ये तो हो गया कि भाई ऑर्गेनेलीज यू विल रिमेंबर इजीली, आप बहुत आराम से याद कर लीजिएगा कि ऑर्गेनेलीज के ही नाम आए बेटा है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, ईआर, गोल्गी, है ना, ऑर्गेनेलीज के ही नाम आए राइटिंग और कुछ नहीं। एस के साथ सेंट्रियोल लिखेंगे, नॉट हियर, ओके। और एक और चीज है राइबोसोम्स, राइबोसोम, तो जितना भी राइबोसोमल आरएनए होगा, दिस इज आल्सो फॉर्म्ड हियर, राइबोसोमल आरएनए इज आल्सो फॉर्म्ड हियर, मींस प्रोटीन सिंथेसिस की भी रिक्वायरमेंट इज टेकिंग प्लेस हियर, ठीक है। अब सेल जो है, सेल इज इंक्रीजिंग इट्स साइज और सेल इंक्रीज कर रहा है साइज अपनी, ठीक, बिकॉज अभी इट वो हैज टू अकोमोडेट अ न्यू डीएनए, उसको रखना है वो सारी चीजें, दैट इज व्हाई इट नीड टू इंक्रीज द साइज, ठीक है, और वो इंक्रीज चलती रहेगी टिल G2 तक, ठीक है, दैट इंक्रीज विल take place till G2। तो ये सारी चीजें हैं which are taking place in this gap-1। Come to S phase। S phase आपको पता है सिंथेसिस फेज है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए is to take place, यानी कि मान के चलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन हैज टू टेक प्लेस, राइट, डीएनए रेप्लिकेशन हैज टू टेक प्लेस। सो अगर मानते हैं कि जो क्रोमोसोम्स है, डीएनए क्या है यहाँ पे, दे आर क्रोमोसोम्स ओनली, मानते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, सपोज इनिशियल पे इट वाज 2C, बिफोर S phase दिस वाज 2C, है ना, अमाउंट ऑफ द क्रोमोसोम इज 2C, after this S phase it will become 4C, S phase के बाद this will become 4C, ठीक। लेकिन अगर जो ploidy of the chromosome before S phase is 2N, after S phase भी it will 2N, there is no change in the ploidy, याद रखेंगे,
This is all again an important question for me. And ये chapter it is just 2 pages, but from this chapter this year 3 to 4 questions were asked. इस साल इतना question आया है from this chapter. This is very important. So the content of the chromosome is 2C before S phase. वो content तो double हुआ, it becomes 4C. लेकिन क्योंकि भाई cell division is not taking place, so there is no change in the ploidy or 2N and it will remain 2N. 4N नहीं होगी, it will not become 4N. ठीक है? चलिए ये याद रखेंगे. और क्या हो रहा है कि DNA replication के साथ साथ when they have to form a new chromosome, तो क्रोमोसोम की रिक्वायरमेंट अभी आपको पता है हाउ क्रोमोसोम असेंबली टेक प्लेस, है ना? हिस्टोन आएगा. सो हिस्टोन भी बनेगा यहाँ पे. हिस्टोन फॉर्मेशन विल टेक प्लेस. साथ ही साथ इन दिस एस फेज centriole duplication. यस, वेरी गुड. इन दिस फेज सेंट्रियोल डुप्लीकेशन विल टेक प्लेस. ठीक है, सेंट्रियोल भी डिवाइड हो जाएगा. Centriole duplication will take place in this phase. ठीक है? तो जितना चीजें requirement है for the initial, this will be formed. अभी सब कुछ बन चुका है, इसको और कुछ further चाहिए नहीं, but फिर भी it will go again for one more checkpoint और फिर से it will go for one more gap phase in order to check कि is anything left जो चाहिए थी, क्या कुछ ऐसा है which this mitotic phase is requiring. So whatever जो भी चीजें left out रह गई हैं for this mitosis, they are fulfilled here. So this is also a metabolic active phase. यहाँ पर भी the proteins which are required for mitosis are formed. यहाँ पर भी बहुत सारी proteins हैं which are required for the mitosis, they are formed. जैसे कि tubulin proteins हैं आपकी एस्टर के लिए required है. So they are also formed here in this G2 phase. So any doubt to anyone in G1, S and G2? G1, S and G2 में good Shri, G0 को you can also call quiescent phase. पूजिता समझ में आ रहा है? कोई डाउट है बेटा? अच्छी लग रही है ना सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन? यस मैम. यस मैम. हो गया? डन? चलो. सो जीवन में क्या हुआ भाई? जीवन में क्या क्या हुआ बताओ? ऑर्गेनेल साइज बढ़ गया. ऑर्गेनेलीज बनी. देन प्रोटीन के लिए राइबोसोम्स आए. ठीक है, आरएनए सिंथेसिस हुई एंड देन एस फेज. यहाँ पे हिस्टोन, डीएनए, सेंट्रियोल, ये सारी चीजें. एंड देन G2 preparatory phase है again for mitotic phase. जो बची हुई proteins है which are required for mitotic assembly, है ना? Yes, all the proteins which are required for mitotic assembly they are done here. तो ये जो centriole word बड़ा शान से you are mentioning ना, इसको लिख लो only in animal cells. In animal cells only. So plant cell में since there is no centriole, तो वहाँ पे कोई भी centriole वाला word you are not mentioning. तो वहाँ पे spindle fibers कैसे बनते हैं? मैं जा रही हूँ. So अब जब spindle बननी है, so यहाँ पर जो centrioles है वो duplicate कर गए हैं, just like this, है ना? एक तो normal ऐसे ही है और एक पेयर इसी का, like 2 pairs diplosomes है ना centrioles. So ऐसे 2 पेयर बन चुके हैं. The things which they take out is the ester race, tubulin की है, ester race, और and they are near the nucleus. Nucleus के पास में होते हैं ना, nuclear boundary के इधर. Plants में मैंने बताया they are polar caps, है ना? Hollow region होते हैं.
वहां पे ये नहीं है, डिप्लोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट, राइट, वहां से भी एस्टर आ रही है, वहां से भी ट्यूबुलेंस आर कमिंग, बट एनिमल सेल्स में these aster rays are called amphiaster, ठीक है, amphiaster। और plants में since they are not from the centriole they are called anaster, ठीक है, animals में this is amphiastral and plants में this has been given a word anastral, ठीक, anastral, ये हुआ। अच्छा, अब तुम लोग आई गेस इतना तो यू समझ चुके हो कि G1 से S and G2 कैसे जा रहे हैं, देन फिर माइटोसिस होने वाली, ये सारी चीजें हो गई है ना। तो लेट्स सी हाउ अ सेल एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स लाइक इन इंटरफेस। वो एक बार देखें हाउ अ सेल लुक्स लाइक इन इंटरफेस, स्ट्रक्चर देखें। So let's see the structure कि how a cell looks like in interface, ठीक, वो कैसे लग रहा है। So ये क्या है भाई, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन रहेगी whether it is animal cell, whether it is plant cell, cell membrane is always there, ठीक है। And usually the picture which is shown to you in your books is always for animal cell, वो animal cell को ही लेके दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या है, this membrane is the nuclear membrane, न्यूक्लियस के अंदर एक चीज बेटा, what is this thing, न्यूक्लियोलस। तो ये सारी चीजें देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे क्या लिखेंगे भाई, प्रॉपर्ली प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस प्रोमिनेंट प्रेजेंट, अच्छे से दिख रहा है ना, प्रोमिनेंट है, प्रेजेंट है, एंड सेल मेम्ब्रेन तो भाई रहेगी ही रहेगी, बिकॉज ऑल द मटेरियल्स इनसाइड जो साइटोप्लाज्म है दैट इज इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन ओनली। तो नेवर डाउट ऑन द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंस या एब्सेंस, the thing which is actually going या diminishing is the nuclear membrane या फिर nucleoli, उसी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, not on the cell membrane, ठीक है। So ध्यान से देखिए, nuclear membrane is prominently present, nucleolus is also prominent। अब exactly कल मैंने बताया था कि chromosome is like this, एक इस तरह का क्रोमोसोम इसमें होना चाहिए इंटरफेस में, है ना, यही वाला तो होना चाहिए। ये क्या चीज है, सेंट्रोमियर, 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 और ये इस तरह से अ क्रोमोसोम शुड बी लाइक दिस, बट जो क्रोमोसोम आपको दिखता है वो कुछ ऐसे दिखता है ना। अभी उसको देख लेते हैं, अब हाउ एग्जैक्टली इट इज लुकिंग। बस दो, हालांकि भाई 46 क्रोमोसोम्स हैं, बट हम हमेशा 2 या 4 लेके ही चलते हैं इधर से। तो कुछ ऐसा हुआ, समझ में आ रहा है कि भाई यू आर वाचिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे भी सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट, समझ रहे हो? यस मैम। एंड दिस इज हाउ यू सी ऑल दीस क्लास। तो जो हम बना देते हैं यूं करके, है ना, we just draw abruptly. So this is what it is present. यहाँ पे centro exactly this is this, but it is not appearing like that. Even with the help of very high magnifying microscope भी नहीं दिखता है। मान लेते हैं ये सारी assumptions हैं साइंटिस्ट के, but वो कहते हैं तो हम बिलीव करेंगे कि this should be like this. Okay, so ये ऐसे दिख रहा है। अब एक और चीज, ये मैंने जो दिखाया, I just try to say कि 2 blue and 2 pinks मैंने बनाया है। I'm just trying to tell you यहाँ पे DNA replication हुआ है and this is double up हो चुके हैं, ठीक है। Similarly जो centrioles थे ये
एंड ये भी इज नाउ डबल, वो भी डबल हो चुका है, इट इज ऑन वन कॉर्नर ओनली। ठीक है, याद रखेंगे। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेटेड है यहाँ पे। कहीं पे कोई डाउट आया? एंड दिस इज द सीन ऑफ द इंटरफेस। ये होता है इंटरफेस का न्यूक्लियस। सो जो भी चीजें थी ये हमने तब देखी जस्ट एट द एंड ऑफ इंटरफेस व्हेन एवरीथिंग इज डन, कि डीएनए का रेप्लिकेशन इज डन, तभी न्यूक्लियोलाइड प्रोमिनेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रोमिनेंट एंड सेंट्रियोल हैज डिवाइडेड। Now come to the next phase. Up we are entering into the mitotic phase. Okay? थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। Let's try to learn something about this. ये तो मैं नहीं बताऊंगी कि it is divided into 4 phases. आपको पता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है? Mitotic phase is also called a equational division. Equational division. क्यों कहते हैं इसको? Why it is called equational division? Very good. Because the parent. Because the ploidy does not change. Very good. Because the ploidy is not changing at all. जो पेरेंट की प्लॉइडी है दैट इज सेम। अगर पेरेंट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे 2n का, so the two daughter cells it is forming, both of them are 2n, है ना? और हमेशा 2-4 चीजें बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। सिंगल पेरेंट यहाँ पे यूज किया है, सिंगल पेरेंट यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट आपको मिल रहा है 2 सेल्स, है ना? मियोसिस में प्रोडक्ट यू आर गेटिंग इज 4 सेल्स, 4 सेल यूज करते हैं, वहां पर भी सिंगल ही पेरेंट यूज हो रहा है। ठीक है, 4 सेल्स मिलते हैं। यहाँ पे यू आर जस्ट गेटिंग 2 सेल्स। यहाँ पे प्लॉइडी इज आल्सो सेम एज द पेरेंट, वहां पे प्लॉइडी विल हाफ आउट। ठीक है, यहाँ पे प्लॉइडी इज सेम एज द पेरेंट। ठीक, ये बात सही। दूसरी चीज, दिस विल टेक प्लेस इन ऑल सेल्स, हर सेल में मियोसिस होगी। इफ वी टॉक अबाउट एनिमल सेल्स, पहले एनिमल सेल्स देखते हैं। एनिमल सेल्स में इन एवरी सेल एक्सेप्ट गैमेटिक वंस, है ना? एक्सेप्ट गैमेटिक सेल्स। सो ये जो एवरी सेल्स है ना, they are called somatic cells. इनको क्या कहेंगे? Somatic cells. So mitosis will take place in somatic cells. सी बात में मैंने क्यों इतना अच्छे से लिख दिया एनिमल सेल? Why am not writing plant cells? जरा बताओ तो प्लांट सेल का कोई? प्लांट सेल्स में बताइए, where is mitosis taking place? बोलो बोलो बोलो, रुको मत। बिल्कुल सही। और बाकी पेरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, वहां से माइटोसिस होगी? क्यों होगी? चलो प्लांट सेल का थोड़ा ध्यान दे दो पहले। देखो प्लांट सेल्स में अभी नहीं किया है चैप्टर, थोड़ा सा प्लीज। प्लांट सेल्स में 2 category of cells you are getting. The first initial cells which are formed, they are called meristematic cells. उनके जो टिश्यू हुए that is the meristematic tissue. They are the actively dividing cells. So ये तो अभी यहाँ लिख लो कि प्लांट सेल्स में only in meristematic cell. प्लांट सेल्स में सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे। ठीक, सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब दे हैव अभी तक नॉट अटेन्ड अ प्रॉपर शेप। जो उनको बनना है, दे आर स्टिल इनटू दैट प्रोसेस।
ठीक है, सो दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। उसके बाद प्लांट सेल्स में आ जाएंगे परमानेंट टिश्यूज, ठीक। आफ्टर मेरिस्मेटिक नेक्स्ट स्टेज इज द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट में भी अब जो तुम लोग कंफ्यूज होते हो, क्यों? क्योंकि परमानेंट में देयर आर टू कैटेगरीज, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में तीन तरह के, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा, ठीक। तो वो उनके जब फर्दर कॉम्बिनेशंस यू विल सी, जैसे जाइलम फ्लोएम, सो दैट इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट। बट परमानेंट है ना, तो परमानेंट मींस कि नो डिवीजन, है ना, दे आर डिफरेंशिएटेड ऑलरेडी, so no division will take place there. That is why mitosis in the plant cell is only in the meristematic tissue. और meristematic में भी तुम जब पढ़ोगे apical meristem, intercalary, very good, lateral meristem, है ना, तो बहुत सारे मेरिस्मेटिक एरियाज आ गया। मतलब एपिकल तो एपिकली ग्रोथ बढ़ाने के लिए, है ना, इंटरकैलरी दो नोड्स के बीच में, या लेटरल फॉर द इंक्रीज ऑफ द गर्थ, है ना। सो देयर आर सो मेनी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ऑलवेज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, है ना। तो दे आर कॉल्ड मेरिस्मेटिक। ह्यूमन बॉडी में भी आपकी स्किन है, दिस इज एक्टिवली डिवाइडिंग, है ना, लिपिड्स है एक्टिवली डिवाइडिंग है। तो ह्यूमन बॉडी में भी a lot of cells which are actively dividing, except हार्ट हो गया, किडनी हो गया, न्यूरॉन्स हो गए, राइट, दे आर नॉट डिवाइडिंग। So plant cells में mitosis is seen only in the meristematic cells. So ये बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे डाउट्स आई सपोज आते हैं और यही क्वेश्चन पे पूछते हैं, तो वो आई सपोज आई होप कि आपके क्लियर हो रहे हैं। हो रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आप सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यू ऑल हैव ऑलरेडी। अभी ड्रॉपर क्या होता है? ड्रॉपर बैच इज द बैच के आपको आता है, वी नो दिस, यू आर मच बेटर देन 11th और 12th का फाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर वो जो नोट्स है ना आपके पास, हमको बस वही ओपन करनी है एंड वही स्पार्क आपके में आ जाएगा, तो बस फिर नीट बहुत करीब आ गया है ना, और आप क्लियर करोगे। चलो ये हो गया। तो वी शुड नो कि माइटोटिक division is a division which takes place in the somatic cell. This division is called equational division because it will end in the same number of the ploidy, same number of chromosomes which the parent cell is having. और लिख लेते हैं कि इसकी 4 फेजेस है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज and telophase. So let's start with the prophase. मेरा क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है कि this prophase is coming after which division? सही बोल रहे हो, बोलो। G2 के बाद आता है, वेरी गुड। तो प्रोफेज इज कमिंग आफ्टर G2। और तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, अंकित भी नहीं बोल रहा है ना। देखो एक चीज याद रखो, यू ऑल आर इन टफ कंपटीशन, तो बोलो बेटा क्लास में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू स्पीक। So maximum चीजें we will try to learn through diagrams without writing बहुत सारा rubbish, ठीक। So prophase में let's see कि how a cell looks like. Interphase का आपको पता है, cell membrane, ये तो होनी है। Interphase you have seen already. इसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है थोड़ी थोड़ी ब्रेक होना चाहती है ना।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी हो रही है? डिमिनिश हो रही है ना? साथ ही साथ मैंने पूरा कलर नहीं किया है न्यूक्लियोलाई को। न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो रहा है, राइट? अच्छा, ये जो प्रोफेज है, हाउएवर एनसीईआरटी नहीं कर रहा है, बट दिस प्रोफेज इज अ लॉन्ग फेज, ठीक? सो दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स लाइक अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज, ठीक है? तो जब अर्ली प्रोफेज आई, अर्ली प्रोफेज में अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ठीक है, अभी प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, और जो क्रोमोसोम्स थे दे हैव डिवाइडेड एंड दे वर लुकिंग लाइक अ बॉल, मींस कि इट वाज नॉट, बहुत डिवाइड हो गया था, लॉट ऑफ बल्क ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल वाज देयर, एंड इसमें जो क्रोमोसोम्स थे यू वर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि वेयर इज द टेल पोर्शन, वेयर इज द इनिशियल पोर्शन, ठीक? सो ये क्रोमोसोम अर्ली प्रोफेज की बात कर रही हूं। इन अर्ली प्रोफेज दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी यहाँ पे इंटैक्ट थी, राइट? एंड क्रोमोसोम डबल कर चुका था बहुत ज्यादा, एंड दिस क्रोमोसोम में देयर वाज नॉट वेरी क्लैरिटी कि वेयर इज द एंड पोर्शन, वेयर द टेल पोर्शन। तो दिस इज लुकिंग लाइक अ वूल बॉल, जैसे ऊन का गोला बनाते हैं ना स्वेटर के लिए, वूल बॉल। तो इसी स्टेज के लिए एक नाम है, किसी को पता है? No. This stage has got a name. This is called spireme stage. सुना आपने होगा, सुना होगा। This is the spireme stage, है ना? इसी early प्रोफेज पे when this is a cotton ball type of thing, तो इसी चीज को, इस क्रोमोसोमल कंडीशन को भी called spireme stage बोलते हैं। याद रखिएगा इसको। This is also important thing to remember. This is called spireme stage. अगर वो डायरेक्ट नहीं भी पूछेंगे ना तो कहीं पे डाल देते हैं ये चीजें। तो this is called the spireme stage. एनसीईआरटी क्या करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो डायरेक्ट नहीं पूछता है जो उसने नहीं दिया है, बट एग्जामिनर तो दे हैव गॉट द क्यूरियोसिटी, उनको तो नॉलेज है एंड दे वांट टू शो देयर नॉलेज। वो बिल्कुल अपने में प्राउड होता है कि हमको दिखाना है, तो वो क्वेश्चंस के पार्ट में डालता है चीजें। So this is the spireme, detangling नहीं हो रही है बेटा, this is the spireme stage. अब gradually ये जो फिगर देख रहे हैं, this is of the late prophase, ठीक? तो late prophase का centrioles तो already बन चुके थे, है ना? And centrioles they have started moving on the two poles. अब उन्होंने चलना शुरू कर दिया है on the two poles, ठीक है? लिखो centrioles pole। बहुत आसान है, दिस चैप्टर इज वेरी इजी। देखो एक मूवी की तरह से आई एम ट्राइंग टू क्रिएट कि ग्रेजुअली एक स्टेज तुम खुद देख रहे हो। सो अब सेंट्रियोल्स दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक? और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिमिनिश हो रही है एंड न्यूक्लियाई इज आल्सो डिसअपियरिंग, ओके? Prophase is the stage where the chromosomes, ये जो थे डबल होके आए थे, तो पहले spireme stage थी early prophase में, but what you are watching here is the late prophase। इधर के साइड में ना जो मैं दिखा रही हूँ, this is the late prophase। तो late prophase तक आते आते the chromosomes they appear in the form of sister chromatids, ठीक? सिस्टर क्रोमैटिड्स की तरह से ये अपीयर हो चुके हैं एंड दे हैव अटेन्ड देयर रिक्वायर्ड शेप, ठीक? बट कंडेंसेशन होने लगा, मतलब दिस इज द लॉन्ग फेज, तभी तो इतना सारा वर्क हुआ। दिस प्रोफेज इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फेज एंड यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज टेकिंग प्लेस। इस पॉइंट को लिखते जाइए, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज टेकिंग प्लेस एंड बाय द एंड ऑफ लोइड प्रोफेज the chromosomes they will appear in this form. By the end of this prophase the chromosome they will appear in this form.
anyone? Clear है बेटा? No. Now come to the next phase. Next phase पे आते हैं. Metaphase. मेटाफेज में लिखना स्टार्ट करो. न्यूक्लियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा, ठीक है. इंटैक्ट ही लिख लेना, तुम लोग कंफ्यूज मत होना. इंटैक्ट, ठीक. अब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. दिस इज जस्ट द साइटोप्लाज्म, ठीक. तो लिखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट. This means कि by the end of prophase, the nuclear membrane got absent, है ना? By the end of prophase, the nucleoli also become completely disappear. तो यहाँ पे you are not going to watch nuclear membrane, यहाँ पे nucleoli कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे. Ma'am, complete disintegration of nuclear membrane. With complete disintegration of nuclear membrane and nucleoli, this will take place by the end of this late prophase or starting metaphase. वहां तक आते आते बिल्कुल फिनिश हो चुका है ये सारी चीजें. कि जो प्रॉपर मेटाफेज आप देख रहे हो वहां पे there is no nuclear membrane, no nucleoli, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है. बस क्या दिख रहा है? Cytoplasm में the centrioles they are now on the opposite poles. Centrioles जो replicate हुए थे S phase में they are now on the opposite poles. देखो centrioles ने already they have started walking. प्रोफेज से ही वॉक करना शुरू कर दिए थे towards the two pole. तो यहाँ आते आते the centrioles are on opposite pole. बहुत आसान है, बहुत आसान है. मैं कह रही हूँ ना तुमसे. तो ये तो इसका एम्पी एस्ट्रल है ना. तो प्रॉपर स्पिंडल फाइबर्स बन गए, राइट. प्रॉपर स्पिंडल फाइबर्स आर हियर. अब बस जस्ट फिक्स देम. अब यहाँ पर ये जो होता है क्रोमोसोम दे वर अलाइन देमसेल्फ on some equator. ठीक है. Chromosomes are aligning themselves on the equator. Chromosomes और इसी वजह से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, मैं बस दिखा रही हूँ आपको. This phase, this plane is called equatorial plane. Equatorial plane. This is not dividing. ठीक है. Don't get confused. So chromosomes they have attained themselves on an equator. इसी से इसे कहते हैं equatorial plane या फिर metaphasic plane, है ना. इसी वजह से यहाँ पे एक वर्ड मिलता है which says metaphasic plane. कभी-कभी ये वर्ड लेते हैं ना. That is the equatorial plane. तो सारे क्रोमोसोम्स यहाँ पे आके लग चुके हैं. अब ये देखो कि सेंट्रियोल्स उनके लिए एक वर्ड और था MTOC, माइक्रोट्यूबुलिन ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, है ना. माइक्रोट्यूबुलिन ऑर्गेनाइजिंग सेंटर. तो इन्होंने अपने माइक्रोट्यूबुलिन की रेस इन द फॉर्म ऑफ स्पिंडल फाइबर्स उन्होंने निकाल रखा है ना. एंड दीज स्पिंडल्स दे आर अटैचिंग on the kinetochore. सेंट्रियोल का पोर्शन है, राइट. और ये सेंट्रियोल है और सेंट्रियोल के साइड में यू आर वाचिंग दिस काइनेटोकोर. और ये जो आपको दिख रहा है दीज आर दी सिस्टर क्रोमैटिड्स. सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना. सिस्टर क्रोमैटिड्स. अब जो क्रोमोसोम था on the interphase they have arranged themselves in the form of sister chromatids. So this is the kinetochore
राइट। और काइनेटोकोर ही वो पॉइंट है जहां पर स्पिंडल्स आर अटैचिंग विद अ क्रोमोसोम। ठीक है, काइनेटोकोर इज द पॉइंट जहां पे स्पिंडल अटैच करते हैं विद द क्रोमोसोम। और ये सेंट्रियोल है which is the MTOC, microtubule organizing center. This means that it is in the hand of the centriole to take out as much of the spindle fiber. जैसे हम पतंग उड़ाते हैं, मैंने उड़ाई तो नहीं बट मैंने साथ जरूर दिया है ऐसे ऐसे रोल छोड़ने में, ठीक है। I was not so much well acquainted कि मैं उड़ा पाऊँ, but the boys must be understanding कि आप धीमे धीमे छोड़ते हो उसको, है ना, which is like in Hindi called ढील देना, है ना। So धीमे धीमे you are losing out the string, तो centriole ढील दे रहा है उसको and spindles are going up, spindle जा रहे हैं, पतंग चली गई in the sky, the kite is in the sky and at the end you are taking back the same string। आप उसको वापस fold कर रहे हो तो kite will come back or not, वापस आएगी। But अभी जो kites थी तो कुछ स्टेज में थी, so अब suppose you want back, तो centrioles they want back, और centromere वो point है जहाँ पे काइनेटोकोर है on the side of the centromere। So if they want back this, है ना, so centromere will break, centromere टूटेगा, है ना। तो I suppose कि metaphase is clear to everyone। यहाँ पे इधर अंकित, अपनी, गायत्री, इकरा, पूजिता, शानुखा, शिरीन, Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. किसी को भी दूसरे के इंप्रेशन में आके क्लियर नहीं बोलना है unless it is clear to you। If you are having any of the doubt किसी को भी तो please ask, क्योंकि nobody else is going to give your exam। Next phase, anaphase। एनाफेज, ठीक है। अब एनाफेज आया तो अब मन नहीं है इनका फर्दर टू फ्लाई द काइट इन द स्काई, तो वो वापस अपनी काइट को लेना चाहते हैं। उनका बहुत हो गया ये गेम। तो एनाफेज में भाई देखो सेल मेम्ब्रेन और ये जो था सारी चीजें यहाँ पे लगा पड़ा था आपका सेंट्रियोल, है ना। ठीक है, सेंट्रियोल्स, ये सारी चीजें हैं ऑलरेडी। अब यहाँ एनाफेज आते आते ये क्या कर रहे हैं कि दे आर ब्रेकिंग दिस, या ब्रेकिंग दिस। जब ये इसको ब्रेक करेंगे, ऑलरेडी इन द लास्ट डायग्राम ऑफ द मेटाफेज वी हैव सीन कि क्रोमोसोम्स आर ऑन द इक्वेटर, वो इक्वेटर पे आ चुके थे। अब वो कुछ ऐसे हो गए हैं कि देयर सेंट्रोमियर, जब ये स्ट्रिंग खींच रहे हैं तो सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया है इनका, और दे आर लिटिल बिट लाइक दिस, ऐसा कुछ सेंट्रोमियर से अटैच है ना। So they are little bit like this। ठीक, so now it is a broken portion। तो मान लें कि यहाँ पे क्रोमोसोम वापस ऐसा हो गया, and this is called now a chromosome, है ना। This is now a chromosome। So they are just taking back this, they are just trying to take back this। तो बस इतना सही हो रहा है एनाफेज में। क्या क्या हो रहा है लिख लो। centromere breaks, sister chromatid separated, sister chromatid separated। अभी क्या है,
daughter chromosomes are formed. ठीक है, सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाएगा. कैसे ब्रेक होगा? Centrioles taking back microtubules, है ना? सेंट्रियोल्स ने अपने माइक्रोट्यूब्यूल्स वापस ले लिए, तो ये ब्रेक हो गया. एंड नाउ सेंट्रोमियर ब्रेक हुआ एंड वो रिपेयर कर रहा है. अभी भी क्रोमोसोम्स आर रिपेयरिंग, कि वो अपने सेंट्रोमियर को रिपेयर कर रहा है फॉर जस्ट अ सिंगल क्रोमोसोम. ओके, अब एक प्रॉपर क्रोमोसोम बन चुका है, डॉटर क्रोमोसोम इज देयर. मींस के मान के चलते हैं कि बहुत सारा पोर्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. अब रेस्ट formality is left for this cell cycle. तो लास्ट फेज पे आएंगे, that is the telophase. Anaphase तक clear to everyone? शानू का आपको क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. Okay, so the last phase of this mitotic phase is telophase. Mitotic phase की लास्ट फेज है telophase. तो telophase पे आएंगे, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन थी ना बेटा, ऐसे थोड़ी सी हो गई है. Little constriction in cell membrane. डॉटर क्रोमोसोम ऑलरेडी बन चुके थे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर डॉटर सेल्स, है ना? डॉटर सेल्स के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स दे आर इन फॉर्मेशन. और ये देखते हैं कि न्यूक्लियोलाई इज आल्सो अपीयरिंग. ठीक, रीअपीयरिंग वर्ड मैं नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि अभी ये दो सेल्स अलग होने वाले हैं. ठीक है, सो न्यूक्लियोलाई इज अपीयरिंग. न्यूक्लियोलाई इज अपीयरिंग. यहाँ पे वही आपके सेल्स आप देख लीजिए, डिवाइड होके आ चुके हैं. ठीक है, सबके पास अपना सेंट्रोमियर है and they are all same. ठीक, so daughter chromosomes are present, nuclear membrane is reforming, nucleoli is reforming. ये अगर सुनना है तो reformation word use कर लो, but actually reformation word is not appropriate here क्योंकि this is for the daughter cells. Okay, so उसके लिए new formation हो रहा है. Right, anyhow it is now trying to separate और इन सब के लिए proper membrane is appearing. एक membrane आने लगी है और they have got the daughter chromosomes present और what चीज इनका centriole. बस इतना है ना. Centriole is also divided into two cells. दो सेल में डिवाइड हो गया है आप. चलिए, तो दिस इज द एंड ऑफ द telophase and by the end ये पूरी membrane will appear. Now come to the last part of the mitosis. This is cytokinesis. Cytokinesis. This is the end of the cell cycle and cell division. So first let's see for the animal cells only.
एनिमल सेल्स में कंस्ट्रक्शन हुआ है, कंस्ट्रक्शन, या दिस इज आल्सो कॉल्ड फरोइंग, किसी चीज को फरोइंग कहते हैं, एनिमल सेल्स, गुड, इन एनिमल सेल्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टिंक्ट, nucleoli prominent, ये सेम यहाँ पर भी रहेगा। सिनेरियो, इट इज रेडी टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स, और दोनों के पास अपने क्रोमोसोम्स हैं, एंड नाउ उनका क्रोमोसोम फिर से उसी फॉर्म में जाने लगा है ना, इन द लूज लूज, फिर से they are going for the interphase वाला structure and it's loosened now, और at the end दो cells मिल जाएंगे, at the end two cells are formed, and these two cells they will go into which phase? Huh? Very good, they will enter into G1, ठीक है, डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड एंड दे विल एंटर इनटू G1। अच्छे से सबको क्लियर हुआ? यस। अब देखते हैं फॉर प्लांट सेल्स। ये हुआ एक प्लांट सेल। प्लांट सेल में व्हाई डोंट फरोइंग टेक प्लेस? नहीं, आई एम आस्किंग व्हाई डोंट दिस फरोइंग टेक प्लेस? क्यों फरोइंग नहीं हो रही है? मैम बिकॉज़ इट इज हैविंग सेल वॉल, तो बहुत हार्ड होती है, रिजिड। हाँ, सेल वॉल इज रिजिड, सो सेल वॉल कैन नॉट गो फॉर फरो फॉर्मेशन, ठीक है, इसलिए फरोइंग इज नॉट टेकिंग प्लेस। तो उसके लिए क्या होने वाला है कि जो ओल्ड वाले जो भी ऑर्गेनेलीज व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड, जो वेस्ट हो चुका है यहाँ पे, दे विल कम एंड दे विल जॉइन हियर, वो यहाँ पे आते जाएंगे एंड दे विल जॉइन हियर, और इस कंडीशन को दिस इज कॉल्ड फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट, जितना भी ओल्ड ब्रेक आउट ऑफ द गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, जो भी है वेस्ट, दिस विल ऑल जॉइन अलोंग विद कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम भी है, बट कैल्शियम पेक्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक, एंड दिस विल फॉर्म अ सॉलिड structure here, and now this structure is called middle lamella, ठीक, middle lamella बन जाएगा, and on this middle lamella a primary cell wall is laid, इसी के ऊपर तो primary cell wall बनेगी, and अंदर से सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर प्रॉपर न्यूक्लियोलाई, और न्यूक्लियोलाई क्यों दिखेगा भाई? इससे पहले इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए, राइट? यहाँ पर एक प्रॉपर न्यूक्लियोलाई इज प्रेजेंट and its chromosome again in the form of chromatin fiber is present. So this is how the cell division in plant cells will take place. I suppose that this is completely clear to everyone. Yes, ma'am. What is she writing? Okay. So I suppose now के interface along with the mitosis is clear to everyone, है ना? meiosis बची हुई है, meiosis करेंगे अच्छे से next class में, but you will do कि watch complete video today,
ठीक है, ताकि कल एकदम से ब्लैंक ना रहो। और सब कोई ट्राई किया करो कि ट्राई टू बी रेगुलर, ट्राई टू बी ऑन टाइम। क्लासेस को मिस करोगे तो तुम पूरी मिस कर दो नहीं, क्योंकि नीट तो होगा नहीं, इसे तो पूरी मिस कर दो, कुछ और कर लो, ट्राई टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। So I'll be meeting you all in the next class with meiosis. तो ये सारा माइटोसिस आप करके आएंगे, we will do the meiosis और कुछ questions करेंगे उसके बाद। ओके, चलिए।